Hi, welcome dear friends. This is me Joshi sir, and once again we are watching our live stream for Maths 4 subject with an binomial distribution. So today's topic for the session is binomial distribution. Binomial distribution is very important topic. You can say chapter for different streams for appearing for MPSC, UPSC exams. At the same time, it can be very helpful for our friends who are applying for GATE exam as well as it will be always useful for our students for Mumbai University. चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों. What you are observing in front of you is an screen where I am showing you the complete subject. So you can say this is our whiteboard जहाँ पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे. बाजू में मैं आपको कंटिन्यूस दिखते रहूँगा so that I can communicate to you. अगर कोई डाउट डिफिकल्टी है तो मैंने मेरे स्क्रीन के बाजू में एक छोटा सा आपको राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे एक अगर आप ओपन करके देखेंगे टर्न करके देखेंगे मोबाइल तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ आवर व्हाट्सअप नंबर. इट इज़ 7208646074. फॉर एनी डाउट डिफिकल्टी आफ्टर द सेशन या between the session, yeah, sorry, not between the session, after the session, you can ping me out. You can send a message to me. We can try to rectify your doubts, difficulties. चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के साथ. नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. So what is a binomial distribution? In simple language, we can say a distribution of the form p of x, which is generally called as p of x is equal to ncx p raised to x into q raised to n minus x. What is that? It is ncx p raised to x. This is a very important thing what we should observe. Are you getting that part? I'm going to highlight that part. So this is the formula जिसे आज हम लोग use करने वाले हैं. What is that formula? It is p of x is equal to ncx. Now थोड़ा सा इसे properly लिखेंगे हम लोग. It is n, it is c, and this is x. Is that clear? So कहीं अगर राइटिंग में आगे पीछे होगा तो थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे. It is ncx p raised to x into q raised to n minus x. Is that clear? Good. आगे चलते हैं. Well, what is n? N is called as number of attempts. Well, n is called as number of attempts. P is called as probability of success. Q is called as probability of failure. सही बात है. So चलेंगे आगे. Is that audible? Sure. चलिए coming back to the screen. A distribution of the form p of x given by ncx p raised to x into q raised to n minus x is called as a binomial distribution. Be careful while starting with the session. So अगर ये न्यूमेरिकल हमें यूज करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करने को आना चाहिए. एंड जब हम लोग ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वी नीड एन कैलकुलेटर. सो ट्राई टू फाइंड आउट एन कैलकुलेटर एंड बी एसोसिएटेड विथ यू एंड नोटबुक पेन कैलकुलेटर सो दैट न्यूमेरिकल के साथ आगे बढ़ेंगे. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. Once again, welcome back. We are starting with the binomial distribution. For those students who have joined late, please be there. We are started with binomial distribution with an important formula for p of x. P of x is given by it is ncx into p raised to x into q raised to n minus x, which includes three different parts. First part is ncx. So observing that part, yes, it is important one. It is ncx. Second one is p raised to x. Third one is q raised to n minus x. What is n? N is called as number of attempts. What is x? X is called as number of successes in n attempts. Sure. And what is q? Q is called as probability of failure. मतलब n अपने total attempts है यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे. C combination function यूज करेंगे कैसे से. Next, P क्या होगा? It is the probability of very good successes in those n attempts. Q is probability of failure. यहाँ पे एक important formula हम सबको याद आना चाहिए जो हमने पहले से पढ़ा है. मैं लिखना चाहूँगा. Hope so you are having that formula with you. It is P plus Q is always equal to 1.
सो व्हाट इज पी प्लस क्यू, इट इज ऑल्सो 1। पी को हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू को हम लोग कहेंगे इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। एंड हमेशा ध्यान में रखिए, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था जहाँ पे हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ा था कि पी प्लस क्यू का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चलिए न्यूमेरिकल के साथ शुरू करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, show that a binomial distribution is a PDF. It is a probability distribution function, या कभी उसे PDF ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाता है। सो व्हाट इज अ PDF? PDF होने के लिए सर इट हैज टू सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज। PDF होने के लिए इट हैज टू सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज दैट वी शुड हैव विथ अस। Sure. Whether connection is okay, whether I am audible, please let me know whether getting sound so that we can continue with the part. Yes or no? We're getting some network problem. Chala, we're getting it. Yes. So again, coming back to the subject, we need to show it is a PDF. We need to show it is a PDF. What is a PDF? PDF is probability distribution function. तो PDF satisfy करने के लिए it has to satisfy few properties. Anybody can let me know what are those few properties? चलिए चेक करते हैं। सर द टू प्रॉपर्टीज जो हम लोग देखना चाहते हैं वो प्रॉपर्टीज ये है। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग मार्क करना चाहेंगे, इट इज प्रॉपर्टी नंबर 1, P of x should be greater than or equal to 0। मतलब सारी प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज 0 से ज्यादा होने चाहिए, या 0 होगा तो भी चलेगा लेकिन कम से कम वो 0 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब वो 100% पॉजिटिव चाहिए। What we are expecting or the values of it must be positive values. Are you getting me? Sure. चलिए नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट, उसी में हम लोग जो यूज करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज दैट सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, समेशन ऑफ ऑल पी ऑफ एक्स मस्ट बी 1। जितने पी ऑफ एक्स के आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है सबके एडिशन कीजिए एंड दैट एडिशन शुड बी 1। एंड इफ यू आर गोइंग टू गेट हाउ द एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 एंड ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर पॉजिटिव, या इट मे बी 0 या ग्रेटर दैन 0, वी कैन से इट सेटिस्फाई अ पीडीएफ। मतलब आज अभी अपने पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें हमें प्रूव दैट करना है, शो दैट करना है द जनरल वेटेज विल बी 5 मार्क्स, जहाँ पर हमें दिखाना है कि ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पीडीएफ, पी ऑफ एक्स इज एनसीएक्स, एक बेसिक फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? सो वी कैन ऑब्जर्व द सेकंड प्रॉपर्टी। व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑब्जर्व द सेकंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी दैट वी आर हैविंग विद अस? प्लीज फोकस कीजिए उसके ऊपर। व्हाट इज दैट सेकंड प्रॉपर्टी? यस, what is that important one? Yes. What is that important second property? Summation of all p of x must be equal to 1। अब ये summation of all p of x के लिए हम लोग ऊपर आके वही अपना p of x का फॉर्मूला देखेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग bd के लिए यूज करते हैं। What is that formula? It tells me it is ncx p raised to x into q raised to n minus x। तो प्रॉपर्टी जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी है summation of all p of x is required to be calculated। उसके लिए लिमिट्स अवेलेबल है, इट स्टार्ट्स विद 0 श्योर एंड इट मूव्स टू n। एंड यहाँ पे जो p of x मिलेगा वो p of x के लिए ये जो ऊपर का फॉर्मूला है, ये ऊपर का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला? आर यू गेटिंग दिस पार्ट? टेल मी यस और नो। प्लीज जो चैट में आप रिप्लाई कर सकते हैं सो दैट मुझे समझ में आएगा वेदर आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग आगे जा सकते हैं कि नहीं। गुड, आई गेटिंग रिप्लाईज, यस। चलिए आगे चलते हैं। सो ऑब्जर्विंग पॉइंट नंबर 2, अभी हमें करना क्या है, ये जो हमने NCX P raised to x into Q raised to n minus x लिखा है बिटवीन लिमिट 0 to n, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसे यूज करना है, अभी इनके साथ हमें आगे जाना है। चलिए दोस्तों इनके साथ आगे चलते हैं। कैसे आगे जा सकते हैं? प्लीज ऑब्जर्व द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर अभी हमें एक्सपांड करना है, पहला वैल्यू क्या मिलेगा? पहला वैल्यू मिलेगा सर 0 के साथ स्टार्ट करते, मतलब जहां जहां पे x है वहां पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों? 0 सब्स्टिट्यूट करना है। पहला क्या था मुझे बताइए? फर्स्ट वन वाज NCX, अभी x के जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा। ये यू कैन सी द स्क्रीन, आई एम शोइंग यू टू दैट पार्ट। x के जगह पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है। पहला वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने? 0।
सेकंड यहाँ पे x अवेलेबल, आर यू गेटिंग दिस पार्ट? मैं उसे हाईलाइट करना चाहता हूँ, हमने यूज किया। सेकंड कहाँ पे है? यहाँ पे है, वहां पे हमने 0 यूज किया। सो वी आर गेटिंग इट इज nc0 p⁻⁴ q⁻n-0। यूज द सेम सेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। पहले अभी हमने 0 डाला था, वहां पे अभी सेकंड 0 के बाद क्या मिलेगा? नंबर 1 मिलेगा। तो यू कैन सी यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे क्या आएगा? 1। सिमिलरली वी कैन मूव फ्रॉम 0 to 1 अप टू n। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 0 से 1, 1 से n तक हम लोग जाना चाहेंगे। Are you getting what I'm talking about? Is that clear? Visible? जा सकते हैं आगे? चलिए, तो पहले 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, लेकिन हमें इतनी सारी बातें नहीं लिखनी है। हम लोग फॉर्मेलिटी करके बेसिक 3 स्टेप दिखाएंगे, 0, 1, 2 का, और उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे n पे। कहाँ पे एंटर करेंगे? n पे। सो आई गेटिंग द लास्ट टर्म एज ncn p⁻n q⁻n-n। Now be careful. What is that part? It is q⁻n-n. Can anybody let me know what is n-n? So n-n is 0. So I am getting the last term as 0. अभी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। अगेन वी रिक्वायर सम बेसिक नॉलेज फ्रॉम अवर प्रीवियस सेशंस व्हाट वी हैव स्टडीड। अगर आपके पास वो वीडियोस नहीं है, आपने नहीं देखे, तो प्लीज गो टू द मैथ्स फॉर प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको वो सारे पीछे के बेसिक वीडियोस देखने को मिलेंगे जहाँ पे हमने फॉर्मूलेज दिए हैं। अभी मैं जस्ट आपको एक छोटा सा हेल्पिंग हैंड देता हूँ, बिकॉज वी नीड दोज वैल्यूज। व्हाट इज NC0? इंटरेस्टेड फॉर दिस NC0? एनीबडी? NC0. What is value of NC0? Is nothing but 1. We know anything raised to 0 is 1. So we are having p⁻⁴. क्या लिखेंगे वहां पे हम लोग? 1. So we can say n-0, obviously n. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे q⁻n है। मुझे बताइए क्या मिलेगा दोस्तों हमें जब हम लोग लिखते जाएंगे 1 into 1 into q⁻n? एनीबडी कैन लेट मी नो क्या मिलेगा हमें वो टर्म? सर हमें वो टर्म मिलेगा, ऑब्जर्विंग इट, सर हमें वो टर्म मिलेगा q⁻n का। क्या टर्म मिलेगा दोस्तों हमें? q⁻n का, प्लस आगे का टर्म हम लोग वैसे लिखेंगे, इट इज nc1 p as it is, q⁻n-1 as it is. Next line, next term exactly as it is, it is nc2 p⁻², q⁻n-2 plus last term. Now be careful. Again we are coming to the point. It is NCN. Please be focused. I am showing something to you. Anybody can let me know what is value of NCN? I am showing something to you. I am interested from your side. Okay, anybody will let me know that answer. What is the answer of NCN? So the answer of NCN is 1. So what is the answer of NCN? It is 1. And since we are getting the answer of NCN as 1, अगेन आप प्रॉपर ऑब्जर्व कीजिए, q⁻0 आपको क्या मिलेगा? सर हमें मिलेगा q⁻0 का वैल्यू मिलेगा 1, 1 into 1 हमें मिलेगा 1, एंड वहां पे टर्म एसोसिएटेड है p⁻n का। सो वी कैन से p⁻n into 1 will give us the answer as 1. So you can see this is 1, this is 1, this is 1, 1 into 1 into the term p⁻n. It gives us the answer, the final answer as p⁻n. Are you getting that part? Are you getting the terms? चलिए मैं yes or no, sure, जाएंगे आगे, चलिए आगे चलते हैं। So now we can say we are having an expansion जहाँ पे फर्स्ट टर्म है q⁻n, फिर आगे linearly उसके expansion के terms अवेलेबल है, that is nc1 p q⁻n-1, nc2 p⁻² या p square into q⁻n-2 plus dot 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 dot, and the last term available is p। दोस्तों यहाँ पे एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके मैथ्स के बेसिक्स चेक करेगा। टेल मी व्हाट वी आर राइटिंग, a square plus 2ab plus b square, we generally write a square, last term is b square with a middle term as 2ab, we are writing it as a plus b the bracket square। याद कीजिए what we are writing, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, we are writing it as a plus b the bracket cube। now दोस्तों आप अभी मुझे बताइए, अगर मेरे पास q⁻n है प्लस nc1 p into q⁻n-1 हमें मिला है, प्लस nc2 p
इंटू क्यू रेस टू एन माइनस टू हमें मिला है, लास्ट टर्म पी रेस टू एन है, कुछ याद आ रहा है? कैन यू associate some part? सब a square लास्ट टर्म b square मिडल टर्म अवेलेबल था, राइटिंग a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे q रेस टू n है, प्लस बीच का प्रॉपर सेट अवेलेबल है, लास्ट टर्म p रेस टू n है. कैन एनीबडी विल टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर दैट वी कैन हैव विथ अस? एनीबडी? आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड. यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम योर साइड. एनीबडी विल टेल मी दैट आंसर? क्या मिलेगा सर हमें वहां पे? चलिए बी क्विक, जल्दी मुझे बताइए वहां पे हमें क्या मिलेगा, फटाफट. Yes, what do I getting that answer? So I getting that answer as a plus b raised to n. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा q plus p raised to n. Are we getting that part? 100%. And already ऊपर हमने पढ़ा था. So we can say सर इसका आंसर हमें मिलेगा q plus p raised to n. क्या मिलेगा? It gives me q plus p raised to n. And hope everybody knows the concept. What is q plus p raised to n? What is p plus q? So p plus q is nothing but 1. P plus q is nothing but 1. So we can say it is 1 raised to n. And when we say anything is 1 raised to n, it is nothing but 1. And when now we have the answer summation p of x is equal to 1. And hence we can say that yes, a binomial distribution is a PDF. A binomial distribution is a PDF, and we have proved the first part, which is one of the important theory question generally available, question number 1 for Mumbai University students. Obviously, maybe from any stream, maybe from mechanical, civil, chemical, computer, yeah, IT. If you are having this topic, yes, it gives us 5 marks. It gives me summation p of x is equal to 1, and we can say a binomial distribution is a PDF. Are you getting what I'm talking about? Tell me yes or no. Just reply me in a live chat. I'm waiting for your part. Sure, be quick. Again, I'm going to keep another numerical in front of you so that आप तब तक chat में reply देंगे, फटाफट numerical पढ़ेंगे. So you can see this is a really difficult and beautiful numerical what we're observing in front of us. Please देखिए, मुझे reply दीजिए. I'm waiting for your reply in the chat. मैं तब तक आगे नहीं जाऊँगा. चलिए दोस्तों, be quick. Is that understood? तब तक बाकी के दोस्त न्यूमेरिकल देख सकते हैं. चलिए, फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल. या you can see the question. For the binomial distribution, if the mean is 5, for the binomial distribution, mean is 5 and standard deviation is 2. Mean कितना दिया है? 5. Everybody can tell me what is value of mean? Value of mean is x bar. What is value of x bar? It is 5. Standard deviation. Yes, we have the value of standard deviation. It is nothing but sigma. What is value of sigma? It is 2. Sure. चलेंगे आगे. Very good. Find a binomial distribution function for all odds against zeros. We need to find out a PDF for all odds against zeros, and hence prove that. Beautiful, prove that di. It may be the first part. Sorry. It may be this first part, or it may be an second part. And इस सेकंड पार्ट में भी हमने 2 पार्ट यूज किए, कभी 1, 2, 3. तो ये 3 अलग अलग टाइप से आपको प्रूव दैट में पूछ सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. एनीबॉडी विल लेट मी नो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या? मैं हमेशा कहता हूँ हर क्वेश्चन कुछ कहता है. अगर उसके पीछे के वर्डिंग आपको समझ में आएंगे तो आपको उसके पीछे का मीनिंग समझ में आएगा, तो आपको आंसर भी आ जाएगा. सही बात है. सो व्हाट इज अ गिवन डाटा विथ अस? प्लीज स्टेप बाय स्टेप में लिखते जाऊंगा सो दैट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट इज अ गिवन डाटा? सो फर्स्ट थिंग गिवन अस x बार इज इक्वल टू 5. x बार को हम लोग और एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं.
it is E of x. Is that visible? Sure. Second one. What we are having second one? Sigma, standard deviation is sigma, that is equal to 2. We can say variance is, that is sigma square is equal to 4. And we need to find out the values of P of x. बाप रे, थोड़ा सा अलग लगता है, क्वेश्चन ही डिफिकल्ट लगता है. दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम नंबर ऑफ पेपर्स, फ्रॉम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ ब्रांचेस. अगर आप अलग अलग ब्रांच में अलग अलग साल में जाके देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग से समझ में नहीं आए तो आगे नहीं बढ़ सकते. कम से कम गिवन डाटा तो हमें ध्यान में आ गया. अगर गिवन डाटा हमारे ध्यान में आता है तो ये आगे का पार्ट हमें समझ में आना चाहिए. तो आगे के पार्ट के लिए हमें देखना है कि भाई साहब ये क्या है. श्योर. चलिए सर, आगे के पार्ट में अगर आप देखते हैं, प्रॉपरली देखते हैं, तो वहां पे ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड वो है फॉर ऑल odds, for all the values of odds against 0. 0 छोड़ के हमें सारे आंसर्स चाहिए. और गेटिंग में 0 छोड़ के हमें सारे आंसर्स चाहिए, एंड ये सारे आंसर्स का ये हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है. श्योर. चलिए, तो अभी वो कैसे मिलेगा उस पर हम लोग फोकस करते हैं. शुरू करते हैं. चलिए आइए सारे बच्चे यहाँ पे. Now I am going to remove my screen. Is it visible? Okay, दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. चलिए, now we can see the first step for the solution. Should we start with that part? Yes sir. जाएंगे. चलिए, तो ये तो हमें समझ में आया कि हमें जो P of x ढूंढना है वो सारे वैल्यूज में से P of 0 को हटा के है. मतलब अभी हमने पढ़ा था सारे P of x का टोटल क्या होता है, 1 होता है. तो अगर हम लोग 1 में से P of 0 को माइनस करते तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ P of x? So it is nothing but this value. It is the value of all odds against x. This is a very important point. Sure. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये P of 0 चाहिए. प्रॉब्लम है कि P of 0 कहाँ से आएगा. उसके लिए क्या हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज अवेलेबल है कि नहीं हम लोग यूज कर सकते हैं. तो चलिए कुछ फॉर्मूलाज में अगेन आपके सामने लेके आए आप. व्हाट आर दोस फॉर्मूलाज? फर्स्ट थिंग, वी नो वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. व्हाट इज दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? एनीबॉडी? सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज x bar. What is value of x bar? The value of x bar is np. The value of x bar is np, and value of sigma is npq. The value of sigma square is npq. Sure. इनमें से अभी np का वैल्यू हम लोग डालेंगे x बार. np का वैल्यू क्या डालेंगे? x बार डालेंगे. अब 1-2 मिनट के लिए मैं अपना स्क्रीन हटाने वाला हूँ आपके सामने से, सो दैट आपको मैं नहीं दिखूंगा, बट वी कंटिन्यू विद द सेशन. श्योर? पक्का? जाएंगे आगे. चलिए. हाँ, सो मैंने अभी क्या किया, मेरा स्क्रीन ऑफ किया, बट स्टिल द रिमेनिंग स्क्रीन इज विजिबल टू यू, एंड अभी हम लोग उसे देखते आगे पढ़ते रहेंगे. चलिए, क्या क्या पॉइंट्स है ध्यान से देखिए. व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आर अवेलेबल विथ अस? द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज अवेलेबल इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला, and that very basic formula is x bar is equal to np. What is that very basic formula? X bar is equal to np, and sigma square is equal to npq. And now what we are going to do, we are going to replace those values of np by x bar. We are going to replace the values of x bar by np या np by x bar. जैसे अपनी रिक्वायरमेंट होगी वैसे उसे हम लोग यूज करेंगे. श्योर? चलिए अभी मैं अपना स्क्रीन ऑन करता हूँ, सो दैट यू कैन विजिबल टू मी. कोई डाउट्स है तो हम लोग सामने बात कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए. ओके, नाउ अगेन वी कम बैक टू अवर ओरिजिनल पार्ट. नाउ इट इज x बार इज इक्वल टू np. सो ये np हमने डाला वहां पे, हमें मिला सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू x बार इंटू क्यू. अभी इसमें से हमें x बार पता है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड x बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा, इट इज 5 इंटू क्यू. सिग्मा स्क्वायर समझ में आया कहाँ से आया? सर ऑलरेडी दे हैव गिवन अस द वेरिएंस एज 4. Yeah, we can say we have calculated variance as 4 because sigma is equal to 2 and sigma square is equal to 4.
So we are getting that part. Now we can say सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमें 4 मिला एंड एक्स बार का वैल्यू हमें हमारे पास 5 अवेलेबल है, तो अभी इसका यूज करेंगे हम लोग एंड इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स बार? वैल्यू ऑफ एक्स बार इज 5, q रिमेन एज इट इज. तो वी कैन से q इज इक्वल टू 4/5. समझ में आया सब बच्चों को? इज दैट क्लियर? इज दैट विजिबल? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है. चाहे तो मैं एक फास्ट रिकैप से उसके आपके सामने रिपीट करता हूँ. दोस्तों देखिए उन्होंने दिया क्या है, एक्स बार का वैल्यू 5 दिया है, सिग्मा का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है. तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें? 4 मिला. सिग्मा स्क्वायर का ऑलरेडी फॉर्मूला क्या था अपने पास, जो अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज पीछे जाके वो M4 का प्लेलिस्ट देखिए, या वहां पे बाद में मैं एक लिंक दूंगा आपको पीडीएफ के, जो हमें अपने सक्सेस के साइट पे या वेबसाइट पे वो सारे पीडीएफ देखने को मिलेंगे. पूरे फॉर्मूलाज के पीडीएफ है, डाउनलोड करके लीजिए, आपके पास रखिए. इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सिग्मा स्क्वायर? वी कैन से इट इज n, it is p into q. So we can say formula of sigma square is npq. उसमें से हमें पता है x bar. What is formula of x bar? So x bar का फॉर्मूला हमें पता है, it is n into p. तो लॉजिक समझ में आया. ये np की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? x bar. q रहेगा एज इट इज, तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला वो होगा x bar into q. इज दैट क्लियर? इज दैट विजिबल? पक्का? जा सकते हैं. अभी हम लोग आगे शुरू करेंगे दोस्तों. चलिए अभी इसे यूज करके कैसे आंसर आया जाएगा उस पर थोड़ा फोकस करते हैं. पक्का? नीचे आइए, substitute the values. Now you can say we are getting that final answer. Are we getting that final answer? So हमने क्या लिखा सर? हमने लिखा x bar सॉरी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू npq एंड हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. सही बात है, गुड. अभी हमने वहाँ पे 4 इज इक्वल टू 5q मिला एंड वहाँ से हमें मिला आंसर q का 4/5. बट वी आर नॉट yes, we are not forgotten our basics. What are our basics? Can anybody tell me? So basics tells me p plus q is always equal to 1. What our basic tells me? p plus q is always equal to 1. तो जब हम लोग लिखेंगे p plus q is always equal to 1, we can say we can find out the value of q. Anybody? How to find out that value of q? Please let me know. Yes, p plus q is equal to 1. Substitute the value of q as 4/5. p plus 4/5 is equal to 1. We can say the answer is 1/5. Tell me, are you getting it? Yes or no? Please comment me so that अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं तो हम लोग और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. चलिए, नाउ वी हैव द आंसर्स ऑफ P, नाउ वी हैव द आंसर ऑफ Q एंड अभी हमें आगे चलना है आगे के पॉइंट के लिए. बोलिए, P समझ में आया? Q समझ में आया सब बच्चों को? श्योर? पक्का? चलिए, अभी हमें x बार पता था तो हमने x बार को कैलकुलेट किया. x bar is 5. We know value of n, not known p. Yes sir, we know the value of p. So हमने वहाँ पे substitute किया. Are you getting it? I'm keeping in front of you. Point wise slide wise हम लोग उसको आपके सामने रखने की बात कर रहे हैं. Is that clear? Is that visible? पक्का है? Sure? चलिए आगे चलते हैं. So now we can say we have the answer of n. That is, what is value of n? It is nothing but 25. What is value of n? It is nothing but 25. अभी हमें n का वैल्यू अवेलेबल हुआ है. चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर ऑफ p of x. Now what is the formula for p of x? A binomial distribution के लिए we know the very basic formula. Anybody? What is that very basic formula? So very basic formula is p of x is equal to ncx into q raised to n minus x. उसमें से हमें n पता नहीं था तो हमने n ऑलरेडी ढूंढा है, कैलकुलेट किया है. What is value of n? It was 25. What is value of x? So it is 0 because हमें p of 0 ढूंढना है. p का वैल्यू 1/5 ढूंढा हमने, q का वैल्यू 4/5 मिला अभी हमें. तो वी आर हैविंग ऑल द वैल्यूज विथ अस. जो मैंने अभी आपके सामने उसे रखा है, वी आर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग? Important thing is to present, you have to substitute those values. We are going to put x is equal to 0. We are going to put n is equal to 25. Are you getting what I am talking about? Yes, we are going to put n is equal to 25. We are going to, yes, we are going to substitute all those values. We are going to put value of p as 1/5. We are going to put value of q as 4/5. Please take out your calculator.
वी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, इनका वैल्यू हमें मिला 25, पी का वैल्यू हमें मिला 1/5, क्यू का वैल्यू हमें मिला 4/5. प्लीज यूज द कैलकुलेटर, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर वी आर हैविंग विथ अस, सो दैट हम लोग आगे जा सकते हैं, हमें समझ में आ सकता है. चलिए, समझ में आ रहा है दोस्तों को? प्लीज डू द कैलकुलेशन, लेट मी नो what is the answer that we are having with us. It is 4/5 raised to 25. So there are two options. In first option, अगर वो पेपर में 4/5 that is fraction में पूछते हैं तो keep the term as it is. अगर वो पेपर में हमें डेसिमल में लेके जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग वो डेसिमल में 0.8 में लेके आएंगे आंसर. अगर वो फ्रैक्शन में पूछते हैं तो हम लोग फ्रैक्शन में as it is रखेंगे एंड उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. we're interested to find out p of 0 or p of x. We are going to substitute that value of p of 0. Anybody will tell me what is value of p of 0? Sir, p of 0 is 4 upon 5 raised to 25. तो हमने उसे यूज किया, हमें अच्छे तरीके से समझ में आया. And yes, we can say that is our first answer, that is our first proved and hence proved part है. उससे देखिए हम लोग आगे आए. Just 4 raised to 25, 5 raised to 25. Do the cross multiplication. It is 5 raised to 25 minus 4 raised to 25 by 5. We can say we are having another part जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं yes sir, this is the first prove that, this is second prove that. Now we can go to the last point जहाँ पे हम लोग जो थर्ड पॉइंट है prove that का उसे यूज कर सकते हैं एंड वहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1 minus 0.8 raised to 25. So this may be our third answer जहाँ पे हम लोग उसे यूज करेंगे एंड हेंस वी कैन से we are done the proved part. Tell me, is that clear? Is that visible or not? Sure, please let me know. I'm waiting for your comment. तो जैसे आपके लाइव चैट में कमेंट आते हैं मुझे समझ में आता है यस स्टूडेंट्स आर गेटिंग द कंसेप्ट सो दैट मैं उसे और आगे टॉपिक पे बढ़ा के लेके जा सकता हूँ. प्लीज लेट मी नो whether you are understanding that part or not. I'm keeping in front of you so that you can do the calculations. I'm just moving some screen. Please do it fast. Chadi, I'm waiting for your reply. Are you getting that answer? Reply me fast. Yes or no? So we can start with next fresh question. This is again a very important question from university point of view. Reply me दोस्तों. I'm waiting for your reply in the chat. Are you getting it or not? Yes or no? So there may be some network issues, but we're expecting from your side. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is another important question from university point of view. The weightage is straightforward, minimum 5 to 6 marks. This is a really important part. This is a really important part. Please be focused on that part. चलिए observe the question. I'm keeping it for you. थोड़ा सा एडजस्टमेंट. चलिए दोस्तों, आई थिंक दिस इज अ गुड एंगल जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. So more focus is available. थोड़ा उजड़े तो है. वो देखो, सोचा समझा कैसे आएगा.
Yes, we are getting the replies. Very good. So we can continue with our numerical. Now please focus कीजिए, ये सबसे important numerical है. Binomial distribution. But they have given us simple इतना सा question है. For the binomial distribution, x bar is equal to 3. What they have told us? X bar is equal to 3, and we are interested to show that, yeah, sorry, to find out p of x is equal to 5. But when given data is p of, what is the given data? So given data is p of 15 p of x is equal to 0 is equal to 2 p of x is equal to 1, and only one thing is made available, that is x bar is equal to 3, and what is required to be calculated? P of x is equal to 5. What is required to be calculated? P of x is equal to 5. Is that visible? जाएंगे आगे. श्योर. चलिए, थोड़ा सा वीडियो लैग हो रहा है, नेट प्रॉब्लम, वी नो द कनेक्टिविटी इश्यूज इन द इवनिंग. चलिए, एक्स बार 3 मिला. अभी प्रॉब्लम ये है कि सर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 ढूंढना है. सही बात है. कहाँ से शुरू करेंगे? क्या क्या पॉइंट्स है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं? मैंने हमेशा कहा है क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन को देखिए, हर क्वेश्चन हमें आंसर की तरफ दिखाता है. मैं हमेशा कहा है न्यूमेरिकल के पीछे मत भागिए, गो टू द कंसेप्ट्स. जितने आपके बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे होंगे दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे आ सकते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं. चलिए, what we are having with us? So we are having first x bar is expectation of x, that is equal to 3. Second, 15 p of 0 is equal to 2 times p of 1. ये जो 15 and 2 है, are you getting it? ये जो 15 है, so ये 15 and 2 ये तो pure number है. But what about this p of 0? And what about this p of 1? So p of 0 and p of 1 are nothing but, p of 0 and p of 1 are nothing but these are the values of a very basic binomial distribution formula जिसे हमें यूज करना है. एंड वो क्या है बेसिक फॉर्मूला? चलिए, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं. एंड ऑलरेडी हमें पता है. आर यू रेडी विथ योर कैलकुलेटर? आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दोस वैल्यूज. We know the BD formula. What is the formula for binomial distribution? The formula is, yes, anybody? It is NCX p raised to x into q raised to n minus x. Our x value is 0. So we are writing as NC 0, p raised to 0. Are you getting me? That's a really important one. Are you getting me? First value is, yes, it is NC 0, p raised to 0, and q raised to, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, it is n minus 0. Now we are having 1, so we can say it is NC 1, p raised to 1, and q raised to n minus 1. तो x का जो वैल्यू है वो हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया है. सो बी रेडी, जाएंगे आगे. दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट. श्योर. तो अभी पॉइंट ये है कि करना क्या है. सर कुछ भी नहीं. वी नो द वेरी बेसिक फॉर्मूलाज. व्हाट आर दोस बेसिक फॉर्मूलाज? NC0 is 1. What is value of NC0? Value of NC0 is 1. Value of p raised to 0, it is 1. So 1 into 1 into 15, it gives me the answer as 15. It gives me the answer as 15. So we can say now the answer is 15 on the left hand side with only one parameter which is available, and that parameter is q raised to n. What is that parameter? It is q raised to n. So we can say अभी जो हमें आंसर मिला है वो आंसर मिला है q raised to n. 15 into q raised to n. Observe the right hand side. Let it from your part. मुझे देखिए एंड मुझे बताइए क्या मिलेगा हमें. बी क्विक, बी क्विक. टेल मी फास्ट, क्या मिलने वाला है हमें वहां से? यस, द कंसेप्ट रिमेन सेम. क्या मिलने वाला है वहां से हमें? सो वहां से हमें मिलने वाला है सर 2 तो वैसे बचेगा. वी नो व्हाट इज NC1. NC1 इज n. p रिमेन एज इट इज, q रेज टू n माइनस 1. अभी यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा था वो हमें यूज करना है. आर यू गेटिंग दैट पार्ट? पक्का है? सबको दिख रहा है दोस्तों? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग. टेल मी क्या चेंज है, क्या वो फॉर्मूला है? सो वो फॉर्मूला है एनपी का. क्या फॉर्मूला है वो? एनपी का. एंड व्हाट वाज दैट फॉर्मूला ऑफ एनपी? यस एवरीबॉडी, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एनपी? मैंने अभी कहा था आपसे जितना आप बेसिक अच्छा करेंगे वो अच्छा होगा. सो वैल्यू ऑफ एनपी इज नथिंग बट
It is x bar. What is the value of NP? It is nothing but x bar. The value of x bar is 3. What is the value of x bar? It is 3. So we are going to substitute that value as 3. So 2 remain as it is. सही है. NC1 का आंसर हमें मिला है. It is n. सही बात है. Q raised to sorry Q raised to n-1 हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया है. यहाँ पे एनपी का वैल्यू हमें x बार मिला है एंड अभी हम लोग एनपी को कट करके वहाँ पे क्या लेके आए दोस्तों. एनपी की जगह पे हम लोग लेके आए हैं x बार एंड x बार के वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है 3, जिसे यूज करके अभी हम लोग आगे चलेंगे एंड वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस. जस्ट अ सिंपल कॉमन सेंस. एक्स बार का वैल्यू 3 डाला, 2 इंटू 3 मुझे राइट हैंड साइड 6 मिला. राइट हैंड साइड में जो ये q था, q n-1, द टर्म व्हाट वी आर हैविंग विथ अस, है कि नहीं, उसे हम लोग कहाँ पे लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए. ऊपर अभी क्या है, n है, नीचे क्या है, n-1 है. ऊपर क्या है, n है, नीचे क्या है, n-1 है. तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कैसे उन्हें यूज करेंगे हम लोग. यस, दैट इज इम्पोर्टेंट वन. कैसे यूज करेंगे. वी नो x cube upon x square, it is x. So x cube upon x raised to 3 minus 1 is nothing but x square only. तो ऊपर क्या बचेगा, n बचेगा. वेरी गुड, वी आर गेटिंग द रिप्लाई. सो ऊपर बचेगा q raised to n only. क्या बचेगा, q raised to n only. So the thing is made available in front of us. Try to get that understanding. It is 15 into q. It is 15 into q raised to minus 1 ऊपर जाएगा तो q मिलेगा. तो we say q is equal to 6 upon 15 and we can deduce q raised to minus 1 ऊपर जाएगा. तो ये 15 को हम लोग नीचे लेके आ सकते हैं यहाँ पे. सो हमें मिलेगा q is 6 by 15 and 6 by 15 we can reduce it to 2 by 5. We can reduce it to 2 by 5. अभी उसे यूज करके हम लोग आगे जा सकते हैं. Are you there? Are you getting this part? Yes or no? चलिए जाएंगे आगे दोस्तों. सो हमें मिलेगा q का आंसर 2 by 5. We know what is value of p. Anybody what is value of p? Sir, p is equal to, it is 1 minus q. उसमें से q का आंसर अभी हमने ढूंढा है तो q का आंसर हमें मिला 2 by 5. q का आंसर हमें क्या मिला, 2 by 5. तो हमने लिखा 1 minus 2 by 5. हमने क्या लिखा, 1 minus 2 by 5 and 1 minus 2 by 5 का आंसर हमें मिला 3 by 5. And we can say now using the very basic formula p plus q is equal to 1, we are getting that answer. So we have p, we have q. So when we have p, we have q, we can find out n. How to find out n? N is nothing but np is equal to 3. These are the very basic formulas जो मैंने डिस्कस किए हैं एंड ये वापस मैं बाद में एक वीडियो में आपको अपलोड करके दूंगा. तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट जब हम लोग वो अपलोड करेंगे आपको सीधा मैसेज आएगा. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए. नाउ वी हैव द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू np इज इक्वल टू 3. वी नो वैल्यू ऑफ p 3 by 5. यहाँ पे लेके आए, वी आर डन द एडजस्टमेंट एंड वी गेट द आंसर ऑफ n as 3. इज दैट क्लियर. 3 by 5, 3 get cancelled out, 5 moves to right hand side part and आंसर एंड में क्या मिलेगा हमें, n is equal to 5. अभी हमें ढूंढना क्या है, what is required to be calculated, p of x is equal to 5. What is required to be calculated, p of x is equal to 5. Come back to our part. We are interested to find out p of 5. We know the very basic formula. What is that formula? It is NC0. वहाँ से अभी आएगा NCx and x का वैल्यू आएगा 5. n का भी वैल्यू क्या है, 5. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, फटाफट उसे ऑब्जर्व करो, फटाफट चेक करो. n का वैल्यू क्या मिलेगा, 5. गुड. x का वैल्यू क्या मिलेगा, सो x का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से 5. p का वैल्यू क्या मिलेगा, सर p का वैल्यू यहाँ से अवेलेबल होगा 3 by 5 रेस टू x. x का वैल्यू अगेन हमें मिलेगा, है कि नहीं. ये 5 का वैल्यू कहाँ से आता है, इट इज कम्स फ्रॉम दिस x. ये q का वैल्यू कहाँ से, हमने ऑलरेडी ऊपर से ढूंढा है, q is 2 by 5 and it is again n minus x.
What is this? This is nothing but n minus x, where n is 5 minus x is 5. I'm just waiting from your side. Use the calculator and let me know what are the answers that we are having with us. Be quick. I'm waiting for your answer. Be quick, be quick. Yes, everything is 0. So anything raised to 0 is 1. And we can say it is 3 by 5 raised to 5. पक्का है 100%. जाएंगे आगे. Now we can go to the final answer where we can say the final answer of P of 5 is 3 by 5 raised to 5. Is that clear? Very good. Divya ji, we are getting that answer. बहुत अच्छा है. अच्छा लगा. बाकी बच्चे भी रिप्लाई दे सकते हैं. Please reply in the part. आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे लाइव चैट अवेलेबल है, उसमें जाके आप यस और नो लिखिए. अगर समझ में आया है तो हाँ बोलिए, कुछ डाउट है तो मैंने स्क्रीन पे बाजू में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर दिया है. अगर आपका स्टकअप है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए. वी विल ट्राई टू सी दैट आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे. चलिए, प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ आई गेटिंग द आंसर, इफ आई गेटिंग द concept. Be quick. Soham ji, Nikita ji, do it fast. Give me the answers. There is another Divya. Very good, Divya ji. She is getting the final answer at 0.777 points. चलिए बाकी के बच्चे. Where is Rutik? Where is Aditya? Vedant, Virat ji, Shlok, Umi. Be quick, tell me the answer. चलिए, number of students are getting the answer. Very good. Tell me, should we move ahead or should we wait? Because we are almost completing 1 hour. Should we continue with this numerical? हम लोग आगे चलेंगे कि ब्रेक लेके एक 10 मिनट के बाद वापस से सेशन स्टार्ट करेंगे, सो दैट अगेन हम लोग और एक आधा एक घंटा आगे जा सकते हैं. टेल मी फास्ट, आई एम वेटिंग फ्रॉम योर रिप्लाई. शुड वी टेक सम ब्रेक एंड वी स्टार्ट विद द पार्ट, सो दैट आगे के और एक 5-6 न्यूमेरिकल्स मैंने रखे हैं. अभी हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 to 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं. अगर कुछ नेट प्रॉब्लम है, इशू है तो मुझे बताइए, सो दैट हम लोग उससे आगे यूज कर सकते हैं. वी आर गेटिंग एक्सलेंट कनेक्शन. टेल मी फास्ट, आर यू गेटिंग द थिंग्स? Very good, Aditya ji. My question is, should we take a break of 5 minutes and then we continue with the part? Nikita ji, very good. Very good. Viraj, Aditya, Nikita, Divya. चलिए बाकी के बच्चे भी है. Where are you? अपडेट कीजिए. Very good, Shlok. So we can see the next question. I am continuing with the video, but I am just going to say that we are just, हम लोग का ये कहना है कि भाई 1 घंटे से ज़्यादा हुआ है ना, तो YouTube पे कभी कभी प्रॉब्लम आता है, तो एक 10 मिनट का ब्रेक लेके हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसे. So we'll be taking just a break of 5 minutes. I will again reestablish it. नया सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगा, प्लीज उसे देखिए, सो दैट हम लोग कंटिन्यूटी में आगे चलेंगे. विद इन 5 minutes वी आर बैक ऑनलाइन. तो जस्ट हैव सम वाटर एंड फिर हम लोग आगे चलेंगे. इट्स एन वाटर ब्रेक. 5 मिनट, बराबर 5 मिनट में हम लोग वापस आते हैं. वी कंटिन्यू विथ फ्रेश स्ट्रीम. प्लीज बी देयर इन द ग्रुप.